Assalamu alaikum students. So it's our chapter 6 in management concepts and practices. Actually, chapter 2. I am not sure what is the chapter number in the latest version of this book by Robbins. But anyway, it's an important chapter. Managers as decision makers. So in this chapter, we will learn about decision making and the role of managers as decision makers. So the first thing we will define what is a decision and what is decision making. So what is a decision? Decision is making a choice from two or more alternatives. So every time we have a problem, we have something come up, we have different solutions or we have different alternatives. So choosing one or more optimal or best alternatives out of many alternatives uh, is called a decision. The decision making the decision making process, first of all, identifying a problem and decision criteria and allocating weights to the criteria. Second, developing, analyzing, and selecting an alternative that can resolve the problem. Third is implementing the selected alternative, and fourth one is evaluating the decision's effectiveness. We can see decision making process in this figure, exhibit 6.1. First of all, we have to identify a problem. For example, my sales reps need new computers. Now this is a problem. Second step is identification of decision criteria. Now what kind of computers are needed for sales reps? Uh, that should be based on memory and storage, display quality, battery life, warranty, carry weights. So these are the some features that would be looked into computers. The third step is allocating of weights to criteria. Now this is the responsibility of the decision maker or the manager to allocate the weights to the criteria, because this is someone's personal choice, because for some people memory and storage is more important, for some people display quality is more important, for some people price is more important, for some people battery life is more important. So these are the things that depend uh, on personal usage of people. So in this particular case, for example, let's say the manager, for this manager, memory and storage is most important, so he assigns a 10, a weight of 10 to memory and storage. Then next important thing is battery life, then carry weight, then warranty, and then display quality. So this manager assigns these weights accordingly to the features. Next is development of alternatives. Now this manager would develop alternatives. He will go to market, he will see what kind of different laptops or different computers which are available uh, in in the certain price range. So let's say he comes up with a list of available laptops or computers which are Toshiba, HP Pavilion, Sony, another make of Toshiba, Dell, Apple, Gateway, Lenovo. Next is analysis of alternatives. Now, this manager has to uh, he has already allocated weights. Now this manager has to develop has to come up with performance indicators or for all of these computers, and then he can multiply the weight with that performance indicator, and he will come up with a total value. And then he can select the alternative which comes up with highest value, and at the last step he or she will apply or implement that alternative. So these are the steps I have explained. You you must uh, you must study them in detail, and we will come up. Hope physical classes will resume on campus, and then we will do this exercise on whiteboard. But for the time being, you must read these slides carefully.
So this kind of working could be done, and then we will come up with numbers for each of the alternative, and then we can select the alternative that has highest score. So I will show you this example on whiteboard once on-campus classes are resumed. So this is the decision-making process. Okay, then next is a very important concept, that is rationality and bounded rationality. Uh, Rationality, what is rationality? Managers make consistent value maximizing choices with specified constraints. So rationality refers to constraints. We have to choose optimal or best alternative, but within certain constraints, with certain rationality. These constraints are called rationality. Why? Because we have limited time and cost to allocate for developing of alternatives. For example, if we have to buy a laptop, we have to buy a computer, then in the previous example we have seen that we will do some research, we will come up with different models and we will compare their features and prices, and then we will buy one कंप्यूटर सो हम जिस काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना? लेकिन क्या हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक दो तीन चार पांच कंपनीज के मॉडल्स देख लेते हैं, हम कुछ शॉप्स को विजिट कर लेते हैं और देख के हम कोई अपना डिसीजन कर लेते हैं। तो हम ये नहीं करते कि दुनिया में या पाकिस्तान में या फैसलाबाद में जितनी भी शॉप्स हैं कंप्यूटर की, हम सारी शॉप्स देखें, या जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं हम सारे मॉडल्स देखें। क्योंकि इसके लिए टाइम एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े से मॉडल्स देख लेते हैं, देख के हमें आइडिया हो जाता है, फिर हम उसमें से कुछ चीज़ चूज़ कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम उसके लिए पूरा फैसलाबाद एक्सप्लोर करें या हम सारी कंपनीज़ को एक्सप्लोर करें, और इसी तरह हमारे पास इतना ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होगी और इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं हम बीयर कर सकते। तो इसलिए हमें एक लिमिट्स के अंदर रह के, जिसे हम बाउंड्री रैशनैलिटी कहते हैं, हमें लिमिट्स के अंदर रह के हमें ना डिसीजंस वो करने पड़ते हैं इस तरह के। तो बाउंड्री रैशनैलिटी यही है, मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली बट आर लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो मैनेजर्स के पास भी लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी होती है, तो वो भी फिर उस इंफॉर्मेशन को उसी हद तक उसको लेके उसको प्रोसेस कर सकते हैं जितना उनका टाइम और जो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं वो उन्हें अलाउ करते हैं उसके लिए। Assumptions are that a decision makers will not seek out or have knowledge of all alternatives। तो वो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो सारे alternatives का के बारे में नॉलेज हासिल करें। वो सेटिस्फाइज करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, तो कुछ जो अच्छे अल्टरनेटिव्स उनको मिलेंगे उसमें से वो चूज कर लेंगे। उसके बाद एक चीज आती है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट। अब होता ही है कि मैनेजर्स को अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे डिसीजन उनको डेली करने पड़ते हैं। तो हर डिसीजन के लिए वो ये पूरा वो जो हमने अभी जो प्रोसेस पढ़ा है 6-7 स्टेप्स वाला, वो उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो चूंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, वो डेली दे कम अक्रॉस मेनी मेनी डिसीजंस एंड मेनी प्रॉब्लम्स। तो फिर वो इसलिए अपनी इस तरह की उनकी अपनी जजमेंट होती है कि अपनी उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो बहुत सारे डिसीजंस वो इस सारे प्रोसेस से गुजरे बगैर कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या चीजें आती हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस हैं, जैसे अभी हमने बात की। इफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस हैं, उसमें जो मैनेजर्स अपने इमोशंस या फीलिंग्स की बेस के ऊपर डिसीजन कर लेते हैं। कोग्निटिव बेस्ड डिसीजन है, मैनेजर अपनी जो स्किल्स और इंटेलिजेंस है, नॉलेज, उसकी बेस पे कर लेते हैं। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग है, वैल्यूज और एथिक्स बेस्ड डिसीजंस है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग में आती हैं। इसमें फिर मैनेजर उस सारे प्रोसेस से गुजरे बगैर ये वाले डिसीजन सारे कर लेते हैं। अब जो है प्रॉब्लम्स वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरे होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। ये तो दोनों के लिए डिफरेंट तरह के जो डिसीजन की हैं वो यूज किए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व गोल्स दैट आर क्लियर, आर फेमिलियर, हैव occurred before, are easily and completely defined, information about the problem is available and
कंप्लीट। तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जो जिनके गोल्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, वो फेमिलियर होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम वो पहले भी पेश आ चुके होते हैं और वो इजीली और कंप्लीटली डिफाइंड होते हैं। अ, जैसे फर्ज करें आप कोई जो है रूटीन मेंटेनेंस है, कोई चीज़ों की रूटीन खराबी है जो कि और चीज़ है, तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि बार-बार होते हैं, तो वो फिर उनका सॉल्यूशन पता होता है। तो उसके लिए जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस। अ रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। तो उसके लिए एक वो रूटीन अप्रोच यूज़ होती है, तो वो उसमें फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। इसके लिए जो एग्जांपल्स इसकी जो टाइप्स हैं प्रोग्राम डिसीजंस की वो है प्रोसीजर, रूल एंड पॉलिसी। तो चूंकि इस तरह के प्रॉब्लम वो बार बार आते हैं तो फिर उनके लिए कुछ प्रोसीजर वो बना लिया जाता है। तो प्रोसीजर क्या होता है? सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स दैट अ मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड टू अ सस्पेक्टेड प्रॉब्लम। रूल क्या होता है? एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैनॉट डू। और पॉलिसी a general guideline for making a decision about a structured problem। तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए एक प्रोसीजर वो बना लिया जाता है कि जी इसको किस तरह से डील किया जाएगा। फिर उसमें आगे रूल आ जाता है कि किसी उसमें मैनेजर के पास वो किस हद तक पावर है कि वो उसमें किस हद तक क्या कर सकता है। और आगे जो पॉलिसी है वो एक जनरल गाइडलाइन वो दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये जो स्टोर्स के मैनेजर्स होते हैं, जो जो चेन स्टोर्स हैं, तो यूजुअली जो वहाँ पे मैनेजर्स होते हैं वो ओनर्स नहीं होते। तो उनके पास कुछ हद तक रूल्स होते हैं कि जी अगर फर्ज करें आपने अगर कोई रिफंड करना है, कोई चीज़ अगर आपने रिटर्न करनी है, वो किस हद तक करनी है। तो अगर वो उस हद तक वो मैनेजर्स को जिस हद तक पावर दी गई है, तो उस हद तक वो उसको कर सकते हैं। अगर वो उस हद लिमिट से बाहर होगी, तो फिर वो उसको रेफर करेंगे अपने सीनियर की तरफ या अपने ओनर की तरफ। तो इस तरह जो पॉलिसी गाइडलाइन है, वो उनको एक दी गई होगी कि जी ठीक है, आपने कस्टमर को सैटिस्फाई करने के लिए जो उनका रिफंड है या जो जो रिटर्न है, वो आपने करना है। अपने उस अम्ब्रेला के अंदर-अंदर रहते हुए, उस रूल के अंदर, लिमिट के अंदर रहते हुए। और उसके लिए प्रोसीजर वो कोई बना सकते हैं कि जी उसके लिए आपने जो इनवॉइस है वो आपने रिक्वायर करनी है, जो जो प्रोडक्ट है वो देखनी है कि उसकी पैकेजिंग वगैरह वो ठीक है या कुछ ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें वो बनाई जा सकती हैं। तो ये है प्रोग्राम डिसीजंस। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे वो ये वही एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी ये है, एक्सेप्ट ऑल कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज़, कि कस्टमर जो भी चीज़ रिटर्न करता है उसको आप रिटर्न करें। प्रोसीजर क्या है? फॉलो ऑल स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग मर्चेंडाइज़ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें। और रूल्स क्या है? मैनेजर मस्ट अप्रूव ऑल रिफंड्स ओवर $50। तो ये इस तरह आपका रूल बन सकता है। आगे जी आप आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वैसे होते हैं जो कि उससे पहले पेश नहीं आए होते। प्रॉब्लम दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर व्हिच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। प्रॉब्लम दैट विल रिक्वायर कस्टम मेड सॉल्यूशंस। तो ये ऐसे प्रॉब्लम है जो कि इससे पहले नहीं आए होते। तो इनके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं होती, एम्बिगुअस होती है। तो इनके लिए फिर कस्टम मेड सॉल्यूशंस की जरूरत होती है। और उनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, डिसीजन दैट आर यूनिक एंड नॉन रिकरिंग डिसीजन दैट जनरेट यूनिक रिस्पॉन्सेज। तो ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि नॉन रिकरिंग होते हैं और वो यूनिक रिस्पॉन्सेज वो जनरेट करते हैं। तो ये इस टेबल में इन दोनों का कंपैरिजन है। आगे डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हैं सर्टेनिटी एंड रिस्क। सर्टेनिटी क्या है जी? अ सिचुएशन इन व्हिच अ मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन बिकॉज़ द आउटकम ऑफ एवरी अल्टरनेटिव चॉइस इज नोन। और रिस्क है सिचुएशन इन व्हिच द मैनेजर इज एबल टू एस्टिमेट द लाइक्लीहुड or a probability of outcome that result from the choice of particular alternative। तो ये आगे इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये इसमें हमने इनकी प्रोबेबिलिटी ली हुई है और इससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस तरह हमारा किस हद तक हमें उसकी जो रेवेन्यू है वो आएगा। तो इसी तरह अनसर्टेनिटी क्या है और ये चीज़ें इसको हम मेरा ख्याल है व्हाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस वो रिज्यूम हो जाएंगी ऑन कैंपस, जो कि इंशाल्लाह ताला फरवरी के मिड में हो जाएंगी रिज्यूम। इसको मैं अभी फिर भी नहीं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ फिर। आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जी डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बाइसेस। तो ये जो डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बाइसेस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। ये सारे हमने पढ़ने हैं बारी बारी। तो इनको हम वन बाई वन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला है जी ह्यूरिस्टिक्स, यूजिंग रूल्स ऑफ थंब टू सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग। अब ये जो डिसीजन मेकिंग बाइसेस एंड एरर्स है ना, ये कुछ इस तरह के एरर्स हैं जो कि गलतियां और बाइसेस यानी कि
जो जानबदारी और वो जो पार्शियलिटी है वो एक्सरसाइज करते हैं लोग, ये वो हैं। और ये चीज़ ज़ाहिर है कि इस चीज़ से मैनेजर्स को अवेयर होना चाहिए कि उनको इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इसमें आ जाती है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है कि रूल ऑफ थंब होते हैं डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैनेजर्स वो यूज़ करते हैं। अब रूल ऑफ थंब ऐसे रूल्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, लेकिन सारी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते। तो इसलिए मैनेजर्स दे मस्ट बी कॉशियस बिफोर यूजिंग रूल्स ऑफ थंब, क्योंकि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन से दो चार हैं जो कि एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो फिर वहाँ पे रूल ऑफ थंब काम नहीं आएगा। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस बाइस, होल्डिंग अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव व्यूज ऑफ oneself एंड one's परफॉर्मेंस। तो मैनेजर्स यूजुअली वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसमें वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि गलत या ओवर एम्बिशियस होते हैं, तो इस चीज से भी उनको बचना चाहिए। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बाइस, चूजिंग alternatives that offer immediate rewards and that to avoid immediate cost। तो मैनेजर्स फिर ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनमें वो उनको भी फौरी तौर पे बेनिफिट नजर आ रहा हो या फौरी तौर पे वो किसी नुकसान से बच रहे हों। तो ये भी हो सकता है कि एक फौरी फ़ायदा हासिल करने के लिए या फौरी नुकसान से बचने के लिए वो किसी बड़े नुकसान का शिकार हो जाएँ, तो इस चीज़ से भी खबरदार रहने की ज़रूरत है। एंकरिंग फैक्ट, फिक्सेटिंग ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग सबसीक्वेंट इन्फॉर्मेशन। तो एंकरिंग फैक्ट में ये होता है कि एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजर के माइंड में होती है और वो अपनी फर्दर जो एडजस्टमेंट करता है उसी इनिशियल इन्फॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए करता है। तो इससे ये नुकसान होता है कि उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, और अगर उसकी जो इनिशियल फिक्सेशन है वो गलत है, तो फिर वो फर्दर सबसीक्वेंट एडजस्टमेंट्स जो भी करेगा वो भी गलत होंगी। Selective perception bias, selecting, organizing, and interpreted, interpreting events based on the decision maker's biased perceptions। तो selective perception bias में क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो चीज़ों को या लोग वो चीज़ों को सिलेक्टिवली उठाते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अपनी बायस परसेप्शंस को सर्व करने के लिए। तो वो उसी इंफॉर्मेशन को लेंगे जो कि उनके पर्पस को सर्व करती है, और वो उसको सिलेक्टिवली उसको परसीव करके उसको सिलेक्टिवली यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंफर्मेशन बायस, सीकिंग आउट इंफॉर्मेशन दैट रीअफर्म्स पास्ट चॉइसेस एंड डिस्काउंटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। तो ये भी सिलेक्टिव परसेप्शन से मिलती-जुलती है कि इसमें लोग या मैनेजर्स वो अब सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि उनकी अपनी थिंकिंग को वो कंफर्म करती है, और ऐसी इंफॉर्मेशन को वो छोड़ देते हैं जो कि उनकी अपनी थिंकिंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट है framing bias, selecting and highlighting certain aspects of a situation while ignoring other aspects। तो इसमें जो मैनेजर है या जो लोग हैं वो जब किसी एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो वो सिर्फ उसमें एक सर्टेन एस्पेक्ट को लेते हैं और बाकी सारे एस्पेक्ट्स को उसमें वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये भी चीज ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह मुकम्मल इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं आती। अवेलेबिलिटी बायस, losing decision making objectivity by focusing on the most recent events। अवेलेबिलिटी बायस में लोग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके ऊपर रिलाई करते हैं जो कि रेडिली अवेलेबल होती है, और ऐसी इंफॉर्मेशन को छोड़ देते हैं जिसको हासिल करने के लिए कुछ उन्हें मेहनत करनी पड़े। तो इस तरह भी उनके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आती है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के की बेस के ऊपर जो वो डिसीजन करेंगे वो फिर गलत हो सकता है। Representation bias, drawing analogies and seeing identical situations when none exist। तो इसमें लोग या मैनेजर्स वो ऐसी एनालॉजी ड्रा करते हैं या इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, इस तरह की आइडेंटिकल सिचुएशंस को उसमें वो ले आते हैं जो कि एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। रैंडमनेस बाइस, क्रिएटिंग अनफाउंडेड मीनिंग आउट ऑफ रैंडम इवेंट्स के रैंडम इवेंट्स में से ना लोग अपनी कोई ना कोई मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जिसको हम सुपरस्टिशियसनेस कहते हैं। जैसे अगर बिल्ली आपके सामने से गुजर गई तो आप कहते हैं कि जी आज के दिन कुछ बुरा होगा, या अगर कोई खास नंबर आपको लगता है कि आपके लिए वो मुबारक है या वो बुरा है, तो उस डेट को आपको लगेगा कि जी आज कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा। तो ये रैंडमनेस बाइस है। Sunk cost errors, forgetting that current actions cannot influence past events and relate only to future consequences। तो sunk cost error का मतलब है कि लोग उस कॉस्ट को नहीं भूलते जो कि डूब चुकी होती है।
उनको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो कॉस्ट उनकी डूब चुकी है या जो लॉस हो चुका है, वो हो चुका है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन को नहीं भूलते और उसका नतीजा ये होता है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने सामने रखते हैं और जो फ्यूचर के डिसीजंस हैं, फिर वो भी गलत होने का चांस होता है। Self-serving bias, taking quick credit for successes and blaming outside factors and failures. तो इसमें जो मैनेजर्स हैं वो जो फेलियर्स हैं उनका इल्ज़ाम दूसरों पे डाल देते हैं और जो सक्सेस है उसका क्रेडिट वो खुद लेते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। हाइंडसाइट बायस, मिस्टेकनली बिलीविंग दैट एन इवेंट कुड हैव बीन प्रेडिक्टेड वंस द एक्चुअल आउटकम इज़ नोन। तो हाइंडसाइट बायस ये है कि इसमें मिस्टेकनली ये बिलीव किया जाता है कि कोई इवेंट या कोई ऐसा काम जो कि लगता है लोगों को कि अगर हम उस वक़्त मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था बल्कि ऐसा करना चाहिए था और अगर हम ऐसा ना करते तो फिर ये ना होता। तो और उस वो उनको इसलिए ये लग रहा होता है क्योंकि आज के दिन में प्रेज़ेंट डे में उनके पास वो वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो कि पहले नहीं थी। और वो जब पहले उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन की अ, अवेलेबिलिटी ना होने की सूरत में जो फ़ैसला किया था, अब वो उन्हें लगता है कि हमें वो फ़ैसला गलत किया था और वो उनको इसलिए लग रहा होता है क्योंकि अब उनके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि पहले नहीं थी। चलें ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया इसमें जो 1-2 टॉपिक जो हैं वो फिर हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे जब हमारा इंशाल्लाह ताला क्लासेस वो रिवीव हो जाएँगी।